So hello guys, my name is Saibal Gupta and you are watching your favorite channel that is TBB India. आज बात कर लेते हैं फ्रेंच ऑटोमोबाइल्स के बारे में। हालांकि जापानीज और कोरियन की तरह ये उतना ज़्यादा फेमस नहीं है इंडिया पे, बट दे आर ऑल्सो डूइंग प्रेटी वेल। तो क्या क्या है ये कंपनी? वो है रेनो, ओके, डेशिया, पजो एंड सिट्रोएन। हालांकि डेशिया पर्टिकुलरली इंडिया में तो आके बिजनेस नहीं किया, बट डेशिया का एक मॉडल है जो इंडिया में धूम मचा दिया था रेनो का बैच के साथ, और वो है डस्टर। सो आज बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, वो है सिट्रोएन। हालांकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश में है सिट्रोएन और फ्रेंच में सिट्रोन, और मे बी समथिंग डिफरेंट। अगर इस गाड़ी के हिस्ट्री के बारे में अगर बात करते हैं, दिस कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1919 इन फ्रांस। सो दिस कार कंपनी केम टू इंडिया इन 2021 with the launch of Citroën Aircross C5, which is a flagship model from Citroën. But yes, आज मैं Citroën C5 के बारे में बात नहीं करूंगा, आज बात करूंगा Citroën का most recently launched Citroën Basalt. Okay, so which is the most affordable coupe SUV from Citroën. I'm gonna tell you that how's the car while driving. And of course, I'm going to tell you that whether you should buy this car in 2024 or 2025 or not, or what is the future of this particular company Citroën. Okay, and of course इस गाड़ी का ड्राइविंग डायनामिक्स की भी बात करेंगे while driving the car. Before I discuss all of this, so please enjoy the cinematic shot of this car. And also don't forget to subscribe my channel, that is TBB India, and also please follow me in my Instagram page, and that is also TBB India, and please follow me in my Facebook page also, and that is also TBB India. So what are you waiting for? So please enjoy the cinematic shot, and I will meet with you inside the car and describe you that how's the car. See me, did I do something wrong? Did I hurt feelings? It is hard to be found when no one's looking. I'm feeling left out and I keep screaming. No one ever understands it. Feels like I became Atlantis. Hidden from the world, I'm looking for a way. I'm looking for a way. Hello boys and girls, hope you are doing absolutely well. So by the thumbnail and the introduction video you already knew that I am driving the all new Citroën Basalt Automatic. So आपको इस गाड़ी पे मिलता है turbo and non-turbo options both, and the car which I am driving it is automatic as I have said, but इस पे आपको सिर्फ turbo variant ही मिलेगा, non-turbo पे आपको automatic नहीं मिलने वाला है. So let's start with the price figure of this car. So price of the car starts from 7.99 lakh and goes till 18.83 lakh. So the car I am driving right now, it is costing around 15.60 lakh on road Kolkata. अगर आपको exact price figure जानना है तो you need to visit to the nearest showroom. But one thing for sure, this is very aggressive price as this is India's most affordable coupe SUV. So now बात कर लेते हैं इस गाड़ी की पावर फिगर की. So this particular car is having 1.2 liter of engine, petrol engine, which is having inline 3-cylinder, which is producing 109 bhp of maximum power at 2500 rpm and 205 newton meter of maximum torque at 1750 rpm. So inline 3-cylinder के साथ साथ इस गाड़ी पे आपको मिलता है turbocharged petrol engine, and आपको कोई डीजल और सीएनजी ऑप्शंस नहीं मिलने वाला है इस गाड़ी पे. सो द पावर फिगर विच आई टोल्ड इट इज इन पेन एंड पेपर. तो बात कर लेते हैं कि हाउस द राइडिंग ऑफ दिस कार एंड व्हाट आर द प्रॉज एंड कॉन्स, एंड वुड यू कंसिडर दिस कार इन 2024 or 2025, and most importantly as a company Citroën, how is it and what is the future of this company in India? So for that you need to be on this video till end.
ओके सो बात कर लेते हैं इस गाड़ी की ड्राइविंग डायनामिक्स की. सो द कार विच आई एम ड्राइविंग इट इज़ ऑटोमेटिक विथ टर्बो वेरिएंट. सो लगभग 2 से 2500 आरपीएम पे इसका टर्बो किक करती है एंड द कार इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट व्हेन द टर्बो किक्स इन. सो अगर ड्राइविंग में बात करें तो यू विल गेट द सेम फ्रेंच कार वाली फीलिंग. सो लेट्स डिस्कस दैट व्हाट इट इज़. सो फर्स्टली डिस्कस करते हैं इस गाड़ी का स्टीयरिंग के. तो so the car which I'm driving, it is having electronic steering setup and not hydraulic steering like any other car brands have. But the way it is connecting with you, it's insane. Like I always said, the car and the bike can communicate with you through steering and handlebar respectively. Even though this car is having electronic steering, आपको अलग ही कॉन्फिडेंस देती है. स्पेशली अगर आप चाहते हो एक ऐसा गाड़ी लेना जिसको आप खुद चलाओगे और लेट्स से कि इफ़ यू वांट टू एंजॉय द ड्राइविंग देन इट्स अ कार फॉर यू एंड द फीडबैक इज़ कम्प्लीटली एक्यूरेट एंड कोई भी फॉल्स मूवमेंट आपको नहीं मिलता है. एंड स्टीयरिंग को पकड़ने में भी आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस मिलता है द वे इट डिज़ाइंस. बट येस ये गाड़ी का जो स्टीयरिंग है ना बहुत ज़्यादा भारी है ना बहुत ज़्यादा हल्का. सो आपको एक मॉडरेट स्टीयरिंग व्हील मिलती है सो विच इज़ वेरी गुड फॉर सिटी ड्राइव एंड ऑल्सो वेरी गुड फॉर हाईवे ड्राइव एज वेल एंड स्पेशली इन हाई स्पीड. सो एंगेजिंग स्टीयरिंग के साथ साथ बात कर लेते हैं इस गाड़ी की सस्पेंशन सेटअप की. सो दिस इज़ द मेन USP ऑफ दिस कंपनी एंड पर्टिकुलरली ऑफ दिस कार. So this is one of the best suspension I have ever experienced so far in this price segment. Price segment के क्यों बात करूँ, अगर आप 5-7 लाख 10 लाख भी अगर एक्स्ट्रा दे दोगे तो ऐसे सस्पेंशन सेटअप आपको नहीं मिलने वाला है. बिकॉज French cars are mainly known for its suspension and steering and the way it handles. Okay, so suspension setup is a little bit bouncy and a little softer as well. So as a result, it glides through the pothole or a speed breaker very easily. Even if it's having a softer suspension, it is giving you that much confidence in high speed. अगर आप overtake करना चाहोगे in high speed, it is giving you an extra confidence. ये suspension setup के चलते you can enjoy your ride very well in every moment. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के चलते ये गाड़ी में आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा वाइल डूइंग द हाई स्पीड एंड ऑफ कोर्स वाइल डूइंग द कॉर्नरिंग एज वेल. और अगर आप zigzag वे भी चलाओगे आपको अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा. हालांकि ये रिकमेंडेबल नहीं है. सो अगर आप इस गाड़ी का इंजन परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसको हम रिफाइंड इंजन तो नहीं कह सकूँगा बट द आउटपुट इज़ इनसेन. As this car is having 3 cylinder, but कभी भी मुझे ऐसे power lag महसूस नहीं हुआ. But this variant is turbo. So usually turbo normal गाड़ियों पे 1500 से 2000 RPM पे किक करती है, but इस गाड़ी पे आपका जो टर्बो किक करती है लगभग 2 से 2500 RPM पे. सो बट जब इसका टर्बो किक करता है तो इट इज़ कम्प्लीटली इंसेन, मतलब डिफरेंट ऑल टुगेदर. सो इस गाड़ी का जो लो रेंज एंड मिड रेंज है तगड़ा है. सो बट टॉप एंड पे मुझे लगता है इसका लैग थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ. एंड लो एंड मिड रेंज अच्छा होने के चलते क्या होता है ये गाड़ी दिस कार इज़ वेरी गुड फॉर लॉन्ग टूर एंड एज वेल एज सिटी ड्राइव. सो यू कैन एन्जॉय द सिटी ड्राइव एंड द लॉन्ग हाईवे टूर हैसल फ्री. आप आराम से 550 to 600 तक क्रूज़ कर सकते हो एंड इट विल नॉट गिव यू दैट प्रॉब्लम until and unless you will have a health problem, okay, or if you need to take a bio break, of course. So this car can achieve 0 to 100 km/h in just 9.95 seconds, which is decent according to me. And this is an automatic transmission wala car with having 6 manual gear. तो हार्ड एक्सेलरेशन पे आई पर्सनली फील इसका गियर शिफ्टिंग मुझे पूरा फील हो रहा था. एंड नॉर्मली इसका गियर शिफ्ट हो रहा था 3500 to 4000 RPM पे. एंड वेन एवर इट शिफ्ट्स द गियर इट इज़ गिविंग अ ऑड साउंड. सो वो मुझे थोड़ा सा अनोइंग लग रहा है. सो ये होता है एक 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर इंजन का डिफरेंस. सो 3 सिलेंडर इंजन बहुत शोर करती है. बीच बीच में मुझे टर्बो लैग महसूस हुआ जब मैं हार्ड एक्सेलरेशन दे रहा हूँ तब. अगर मैं पावर की बात करूं
देन इट इज़ गिविंग अ डिसेंट पावर आउटपुट। इंजन का ग्रांट आपको केबिन तक भी सुनाई देगा। सिट्रोएन ने बहुत हद तक इसको मैनेज करने का कोशिश किया है NVH लेवल को, स्पेशली इन दिस कार। अगर C3 एयरक्रॉस का मैं बात करूंगा तो C3 एयरक्रॉस में आपको NVH लेवल उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू दिस। और अगर ये गाड़ी बाई चांस अगर 4 सिलेंडर में आ जाता तो मक्खन की तरह चलता है ये गाड़ी। बट मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस 3 सिलेंडर ऑफ इंजन। बट हाँ, इसका शोर और थोड़ा सा NVH लेवल को थोड़ा सा और ज़्यादा मैनेज किया जा सकता बाई सिट्रोएन, तो दैट्स मेक्स अ ग्रेट कार अकॉर्डिंग टू मी। सो बहुत हो गई पावर एंड पिकअप। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट important thing which is required hand on hand, and that is brake. So this car is having disc in front and drum brakes in rear. So topmost variant पे आपको rear disc दे देता तो अच्छा होता, पर ऐसे अगर देखा जाए so that doesn't make any big difference. brake by decent है, पर हार्ड ब्रेकिंग के टाइम में लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस इज़ अ ड्रम ब्रेक, तो हार्ड ब्रेक पे एक साउंड होता है, मुझे थोड़ा सा वो अनॉय कर रहा है। एंड इवन केबिन के अंदर भी ये साउंड मुझे मिल रहा था। सो ये भी सही है कि ड्रम ब्रेक थोड़ा सा ज़्यादा इकोनॉमिकल है। सो टायर्स आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ड्राइविंग डायनामिक्स। सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टीयरिंग, गाड़ी का हाइट, वेट, विड्थ, लेंथ एंड टायर के ऊपर डिपेंड करता है एक गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी। सो हाउएवर यू विल गेट 205/60 R16 डायमंड कट एलॉय व्हील वाला टायर, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हर वेरिएंट पे आपको सेम साइज का टायर मिलेगा, एंड दैट्स गुड। मैंने बहुत सारे ऐसे कंपनी देखा है जहाँ पर बेस मॉडल में आपको टायर का साइज़ थोड़ा सा छोटा दे दिया जाता है जस्ट फॉर कॉस्ट कटिंग, बट सिट्रोएन ने ऐसा यहाँ पर नहीं किया। मतलब ओवरऑल आप बेस वेरिएंट चलाओ या टॉप वेरिएंट, ड्राइवेबिलिटी आपको सेम ही मिलेगा। मुझे एक चीज़ की मुझे कमी दिख रही थी, जो इस गाड़ी में भले ही आपको फीचर मुझे भर के नहीं मिलने वाला है, बट ड्राइवेबिलिटी के साथ इस कंपनी ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, चाहे आप बेस वेरिएंट ले लो या आप टॉप मोस्ट वेरिएंट ले लो। हालांकि इसका टॉप वेरिएंट पे भी आपको ज़्यादा फीचर नहीं मिलने वाला है। सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी विच आई विल डेफिनेटली डिस्कस इट वंस आई विल गो बैक टू होम। सो नाउ बात कर लेते हैं इस गाड़ी की डिज़ाइन के बारे में। सो obviously design is one thing which is subjective, may you like it, may you not. So ये गाड़ी based है C3 एयरक्रॉस पे। सामने से ये गाड़ी एकदम C3 एयरक्रॉस के तरह ही फील देगी, बट अब इस पे दिया गया है LED हेडलाइट ट्रीटमेंट एंड DRL। सो पीछे से आपको एक कूपे डिज़ाइन मिलेगा। सो ओवरऑल इस गाड़ी का जो लुक्स जो है वो बहुत ही बड़ी लगती है, एंड स्पेशली पीछे का जो स्लोप है और उसको लेके जो एक ओवरऑल जो एक फील गुड फैक्टर है, इस गाड़ी को देख के ऐसा लगता भी है। सो दैट मेक्स दिस कूपे कार वेरी गुड लुकिंग कार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो डिज़ाइन इज सब्जेक्टिव एज आई हैव सेड ऑलवेज, बट मुझे पर्सनली इस गाड़ी का जो लुक्स है सिंपल लगा, मिनिमलिस्टिक लगा एंड बहुत ही अच्छा लगा। सो ऑन टॉप ऑफ दैट यू विल गेट दैट 180 millimeter of ground clearance, which makes this car very practical for mild off-road. अगर R17 वाला टायर दे देता तो ये गाड़ी दिखने में और थोड़ा अच्छा लगता, but it's okay, like ये उतना भी ख़राब नहीं लग रहा है। एंड स्पेशली जो क्लैडिंग है, वो क्लैडिंग के चलते मुझे वो डिज़ाइन, एक्चुअली उसका जो टायर का जो ब्यूटी है वो निखर के नहीं आ रहा है। दैट इज़ माई पर्सनल व्यू, मे बी इट इज़ डिफरेंट फॉर यू। अगर नाउ बात कर लेते हैं इस गाड़ी की बूट स्पेस की। सो यू विल गेट 470 लीटर ऑफ मैसिव बूट स्पेस विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल एज वेल। आपको लोडिंग लिप बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। सो एज अ रिजल्ट आपको भारी सूटकेस डालना या निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो नाउ बात कर लेते हैं इस गाड़ी की इंटीरियर की, एंड विच इज़ वेरी स्पेशियस एंड वाइड इंटीरियर के चलते थोड़ा सा रूमी फील भी होती है। एंड बैक सीट का जो कंफर्ट है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड यू विल गेट अंडर थाई सपोर्ट एंड यू कैन इंक्रीज इट मैनुअली विच इज़ प्रीटी इनोवेटिव। सो यू विल गेट विंग शेप्ड headrest as well, which makes this car very practical if you want to take a power nap. And
while you are taking the power nap, it will give you the extra comfort to your head and as well as to your under thigh. So for middle passenger you will not get any center headrest, but अगर होता तो IRVM से अच्छा visibility नहीं मिलता, so which is not even practical, right? So अगर मैं ओवरऑल विजिबिलिटी की बात करूँगा तो IRVM से आपको ज़्यादा अच्छा विजिबिलिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसका जो पीछे वाला जो ग्लास पैनल है बहुत छोटा सा है बिकॉज ऑफ दिस कूपे डिज़ाइन। बट अगर इसका मैं ORVM का बात करूँगा तो ORVM से आपको अच्छा विजिबिलिटी मिलेगा एंड विच इज़ वेरी डिसेंट एज वेल। इसका जो ब्लाइंड स्पॉट जो है वो भी ज़्यादा नहीं है, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि अगर आप टाइट पार्किंग से इस गाड़ी को निकालोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो इवन इफ यू विल गेट स्लोपिंग रूफ ड्यू टू द कूपे डिज़ाइन, आपको प्लेंटी एनफ ऑफ हेड स्पेस हेड रूम मिलेगा एंड विंडो भी आपको थोड़ा सा बड़ी मिलती है, सो एज ए रिजल्ट आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस नहीं होगा। इवन इफ योर हाइट इज़ अबव 6 फीट 6 फीट 1 6 फीट 2, आपको यहाँ पर हेड रूम में या लेग स्पेस में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। सो पीछे पे आपको मिलता है 2 AC वेंट्स एंड विथ टाइप A चार्जिंग पोर्ट्स। I am little bit disappointed here because in 2024 Citroen can easily give Type C charging port. सो नाउ पीछे की तरह आगे भी मिलते हैं आपको कंफर्टेबल ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट्स जो आपको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट दे देता तो लाजवाब होता। नाउ आपको 7 इंच का एक TFT क्लस्टर मिलता है वेयर यू विल गेट ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन वाइल ड्राइविंग एंड सेंटर पे आपको मिलता है 10.25 इंच का डिस्प्ले विद वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो के साथ, जिसका टच सेंसिबिलिटी मुझे ठीक ठाक लगा। बहुत एक्सीलेंट तो नहीं बोलूँगा मैं, बहुत ख़राब भी नहीं है। और दिस कार इज़ हैविंग द रियर कैमरा जिसका क्वालिटी मुझे खास जमा नहीं। सो सेंटर में कप होल्डर के पास आपको मिलता है एक वायरलेस चार्जिंग पोर्ट। सो अगर आपका फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है तो आप आराम से इसको चार्ज कर सकते हो। सो मुझे एक कंप्लेन है इसका प्लास्टिक क्वालिटी के साथ, सो मुझे एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सो डोर हैंडल पे या जहाँ पर भी ये हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया, स्पेशली द हॉर्न एंड द गियर नॉब, इस पे बहुत ही घटिया लेवल का एक्चुअली चीप क्वालिटी का एक हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया जो मुझे एक्चुअली चुभ रहा था। सो दैट कुड हैव बीन बेटर। अगर मैं इसका म्यूज़िक आउटपुट का मैं बात करूँगा, मुझे वो डिसेंट लगा, बहुत खास तो लगा नहीं और बहुत ख़राब भी नहीं लगा। अगर मैं बात करूँगा AC आउटपुट की, तो AC आउटपुट ज़बरदस्त है। सो इन दिस कार यू विल गेट ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एंड यू कैन सेट दिस मिनिमम अप टू फ्रीकिंग 13 डिग्री सेल्सियस। मेरे घर पे जो पैनासोनिक AC है उस पर भी आपको इतना कम सेल्सियस पे आप टेम्परेचर को सेट नहीं कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स आपको टिपिकली एक रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्रिल मिलता है इन AC जो आपको हर Citroen के गाड़ी पे मिलेगा। सो नाउ बात कर लेते हैं इस गाड़ी की सेफ्टी की। सो एज दिस कार बेस्ड ऑन C3 एयरक्रॉस विच वाजंट परफॉर्मिंग वेल, आई होप बसॉल्ट के साथ ऐसा सच ना हो। So however, you will get 6 freaking airbags in this car and that too standard across all variants. And you will get rear park assist, heel hold, ESP, tire pressure monitoring system, ISOFIX seats as standard. Now बात कर लेते हैं the most common question asked by every Indian. कितना देती है? So you can expect around 16 to 18 kilometer of mileage, but अगर आप hard accelerator देके चलाओगे तो आप of course the mileage drop to 13 km per liter. So looking at the size of this vehicle, which is I feel it's decent. चलो तो KFC पे आ गया and after taking my lunch, let's go back to home and I'll discuss that whether you should take this car in 2024 or not and what is the future of this car in India. So hi guys, so I'm back at home. सो नाउ डिस्कस करते हैं इस गाड़ी का फाइनल वर्डिक्ट के बारे में। सो मेरा पिछले वीडियो पे भी अगर आप देखे होंगे तो आपको मैंने हमेशा कहते रहा हूँ कि आप कोई भी गाड़ी ले लो, कितना भी प्राइस पे कर लो, एक चीज़ हमेशा कोई ना कोई गाड़ी में कुछ ना कुछ फ्लॉज रहेगा ही। सो ऑब्वियसली Citroen Basalt में भी आपको बहुत सारे फ्लॉज मिलेंगे। सो जो मुझे प्रैक्टिकली महसूस हुआ वाइल आई वॉज ड्राइविंग द कार एंड कुछ फ्लॉज मुझे सुनने को आया बाय अदर ऑटो रिव्यूअर्स,
जो पॉइंट मैं धीरे धीरे करके आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। हालांकि यहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला हूँ एंड ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू डिमीन देम, ओके। आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस कार based on my experience and as well as justifying the price and as well as if I am going to buy this particular car, then what are the problems I can face, okay. So let's start with the first point. That इस गाड़ी में आपको कोई क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है एंड ऑफ कोर्स आपको इस गाड़ी में कोई ADAS नहीं मिलता है, इवन नॉट इवन लेवल 1, okay. If you are a daily commuter, so suppose if you are going to office or suppose if you are using this car in daily to daily life, so that time ADAS is required for the city drive because आपको सिटी के अंदर से आपको ये गाड़ी को कम्यूट करना पड़ेगा। तो आपके लिए ये गाड़ी थोड़ा सा मुझे लगता है ADAS होना चाहिए था, क्योंकि ADAS is one of the feature और की फीचर एटलीस्ट फॉर द न्यू ड्राइवर, ओके। बट अगर इस गाड़ी को आप लॉन्ग जर्नी में आप इस गाड़ी को लेके जाना चाहते हो, सपोज एज आई हैव सेड कि इस गाड़ी में आप आराम से 550 600 तक क्रूज कर सकते हो एट ए स्ट्रेच। तो बट लॉन्ग जर्नी में अगर मैं बोलूँगा तो लॉन्ग जर्नी में ADAS एंड क्रूज कंट्रोल बहुत इफेक्टिव होता है, हालांकि इस गाड़ी में वो नहीं है। सो व्हाट आई पर्सनली फील कि एटलीस्ट Citroen को ADAS लेवल 1 एंड क्रूज कंट्रोल एटलीस्ट इस गाड़ी में दे देना चाहिए था। नाउ सेकंड पॉइंट इज दैट इस गाड़ी में आपको कोई पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता है। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए एज अ बायर, इज इट रियली नेसेसरी टू हैव पुश स्टार्ट स्टॉप बटन? आई डोंट थिंक सो। मैं एक्चुअली की फॉब से भी काम चला सकता हूँ। सो मेरे लिए ये जो स्पेशली मेरे लिए मैं अगर बात करूँगा तो मेरे लिए ये पुश स्टार्ट स्टॉप बटन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। हाँ, ये दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा सा स्पोर्टी फील आपको देता है वाइल इफ़ यू आर स्टार्टिंग द व्हीकल विद द हेल्प ऑफ पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। ये नहीं रहा तो आपको ये गाड़ी लेना ही नहीं चाहिए, ऐसा सच नहीं है। Another thing which I have heard that इसका जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है वो बहुत ज़्यादा छोटा सा है। ओवर 10 इंच स्क्रीन इज गुड इनफ फॉर यू। हाँ, इसका ब्रेजल्स थोड़ा मोटे मोटे हैं तो वो थोड़ा सा ऑड लगता है। जो टच सेंसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है और एकदम एक्सेप्शनल भी नहीं है, ओके। ये अप टू द मार्क है। अगर आप एक डिसेंट सा एक टच सेंसिबिलिटी आपको मिलेगा। हाँ, इसका कैमरा आउटपुट है वो मुझे उतना खास जमा नहीं है। सो इफ़ यू वांट यू कैन गो विद एनी आफ्टर मार्केट ट्रीटमेंट एंड ऑफ कोर्स इस गाड़ी में आपको मिलता है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले एज वेल। अगर आप साइज के बारे में बात करते हो, हाँ साइज डज मैटर, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप 32 इंच का एक स्क्रीन ही चिपका दो यहाँ पर, ऐसा नहीं होता है। मतलब है कि इस गाड़ी में आपको ब्रांडेड म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है। सी आप अगर म्यूज़िक के बहुत ज़्यादा शौकीन हो या आप अगर म्यूज़िक को प्रेफर करते हो वाइल ड्राइविंग द कार जस्ट लाइक मी, तो यस आपको वो बेसी इफेक्ट आपको इस गाड़ी में नहीं मिलने वाला है। बट इसका जो साउंड क्वालिटी उतना ख़राब भी नहीं है। आप डेली टू डेली लाइफ में आराम से इस म्यूज़िक सिस्टम को यूज़ करना चाहते हो। बट अगर आप एक म्यूज़िक एंथुसियास्ट हो तो आप आराम से आप इस गाड़ी का जो म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड कर सकते हो। नाउ द थिंग इज दैट आप ये शायद बोलोगे कि बहुत सारा हैचबैक कार में भी एक्चुअली ब्रांडेड म्यूजिक सिस्टम दिया जाता है। व्हाई Citroen cannot give a branded music system in this car? तो मेरा मानना है कि जो हैचबैक की बात आप कर रहे हो, जो रिव्यूअर्स लोग कर रहे हैं, तो वो एक प्रीमियम हैचबैक है एंड दैट टू द टॉप वेरिएंट में आपको वो म्यूजिक सिस्टम मिलेगा। एंड हालांकि इसका अगर प्राइस सेगमेंट को अगर मैं देखूंगा, ये है स्टार्ट ही होता है 7.99 लाख से एंड गो स्टिल अराउंड 13 पॉइंट समथिंग, ओके। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसा एक गाड़ी में आपको एक ब्रांडेड म्यूजिक सिस्टम मिलेगा? इस गाड़ी का जो अगर प्राइस सेगमेंट की बात करूंगा, ये स्विफ्ट डिजायर से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप ऑब्वियसली इतने दाम में एक ब्रांडेड म्यूजिक सिस्टम नहीं अफोर्ड कर पाओगे। तो दैट इज अनदर थिंग। बट अगर आप एक म्यूजिक लवर हो लाइक मी, तो आप आराम से इस गाड़ी को लेके आपके टेस्ट के हिसाब से आप इसका म्यूजिक सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हो। द थिंग इज दैट डोर हैंडल्स, ओके, सो एंड स्पेशली द आउटसाइड वाला, ये डोर हैंडल मुझे कुछ जमा नहीं। एस्थेटिकली अगर मैं बात करूंगा तो इस गाड़ी के साथ ऐसा टाइप का डोर हैंडल मुझे ठीक सूट नहीं कर रहा था। एस्थेटिकली गुड डोर हैंडल बार हो, ये देना मुझे लगता है थोड़ा सा जस्टिफाइड होता, बट इसके लिए इस गाड़ी को सिलेक्ट ना करना ये जस्टिफाइड नहीं है। नाउ द फाइनल थिंग इज द सनरूफ। Okay, so this is the main vital thing which so I'm going to discuss in this video. तो सनरूफ क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं, इवन Citroen का भी कहना है कि इंडियन वेदर इज नॉट गुड फॉर द सनरूफ, ओके।
देखो यहाँ पर मैं एक चीज बोलूंगा कि ये सनरूफ मैटर करता है। अगर आप एक गाड़ी को लॉन्च कर रहे हो इंडिया में, तो उसका अगर सेल्स फिगर देखोगे, यहाँ पर सनरूफ होना एक बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक फैमिली कार के लिए। हालांकि आई नो दैट इंडियन पेरेंट्स आर मिस यूजिंग इट, ओके। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सनरूफ दे देना जरूरी था, एटलीस्ट टॉप वेरिएंट पे सनरूफ देना जरूरी था। बट अगेन मैं कह रहा हूं कि सनरूफ मेरे लिए उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। बट मेरे लिए मैटर नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए नहीं मैटर करता है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे इंडियन कार बायर्स की, तो वो लोग सनरूफ चाहते हैं। इवन अगर देखा जाए, मेरे मम्मी को भी सनरूफ वाली गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसके लिए मैं बोल सकता हूं ये कि इस गाड़ी में सनरूफ दे देना चाहिए था सिट्रोएन को। बट आई डोंट नो व्हाई इट वाज नॉट गिवन, एंड एक्चुअली द जस्टिफिकेशन व्हाट दे आर गिविंग दैट यस, इंडियन वेदर इज नॉट फिट फॉर सनरूफ, ओके। हाँ, हो सकता है इसमें कोई फ्लैशी फीचर ना हो, बट इस गाड़ी में जो मिलता है वो बाकी गाड़ियों में आपको नहीं मिलेगा। नाउ मेरा मानना यह है कि इस गाड़ी में अगर सपोज इस गाड़ी में ये सारे फीचर्स अगर दे दिया जाता, तो ऑब्वियसली क्या होता है कि इस गाड़ी का प्राइस एटलीस्ट 4 to 5 लाख इंक्रीज हो जाता, ओके। तो एक 4 to 5 लाख अगर इंक्रीज होता, तो इसका टॉप वेरिएंट का कॉस्ट हो जाता लगभग 20 लाख। एंड 20 लाख पे आप एक सिट्रोएन का गाड़ी लेना चाहते हो, थिंक एज अ इंडियन पर्सपेक्टिव। 20 लाख में आप ऑब्वियसली सिट्रोएन का कोई भी गाड़ी नहीं लेना चाहते हो, एंड C5 एयरक्रॉस इज वन ऑफ द मैसिव एग्जांपल फॉर यू एज वेल। एज अ कंपनी सिट्रोएन का क्या फ्यूचर है, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर मैं राइट नाउ द सिचुएशन इफ आई टॉक अबाउट सिट्रोएन का सेल्स फिगर उतना ज्यादा नहीं होने के कारण यही है कि अभी यहाँ पर ज्यादा डीलरशिप अभी तक आया नहीं है। सो सिट्रोएन का सेल्स फिगर इतना कम होने का मेन रीजन यही है कि सिट्रोएन गाड़ी के बारे में लोग ज्यादा अवेयर है ही नहीं। इवन आप अगर देखोगे रूरल एरिया में अगर जाओगे, पूछोगे कि सिट्रोएन का गाड़ी है ये, तो दे विल आस्क यू दैट क्या ब्रांड का गाड़ी है ये, सॉरी। तो ये चीज होता है। बट अगर आप अर्बन एरिया में अगर सिट्रोएन देखोगे, तो टोटल वेस्ट बंगाल, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, एंड वेस्ट बंगाल में सिर्फ 2 शोरूम एंड सर्विस सेंटर अवेलेबल है। वन इज इन कोलकाता एंड सेकेंड वन इज इन आसनसोल। जस्ट थिंक अबाउट इट। सो बट सिट्रोएन का कहना है कि बाय 2025 they will gonna have near about 200 plus service center and the showrooms. बट अगर ये होता तो मुझे लगता है थोड़ा सा बेहतर होता, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखोगे ये आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर ज्यादा लोग सोचते हैं। मारुति, ह्यूंडई, टाटा, महिंद्रा, किया, तो ऐसे ही लोग ये गाड़ी नहीं लेते हैं बिकॉज दे आर गिविंग द बेस्ट कस्टमर सपोर्ट और बेस्ट कस्टमर सर्विस आफ्टर सेल्स, ओके। जिस हिसाब से बाहर की कंपनी इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डर तो लगता है एज अ इंडियन बायर। बट हाँ, अगर मैं बात करूंगा सिट्रोएन के बारे में, तो सिट्रोएन का एक लॉन्ग टर्म गोल है इन इंडिया। ऑब्वियसली 2021 में आके 24 में नहीं जा सकता बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी in India. Okay, so that's all about this particular car, guys. So what's your opinion? Please do let us know in the comment section, and if you like this video, so please subscribe my channel, that is TBB India, and follow me in my Instagram page, and that is also TBB India, and please follow me in my Facebook page, and that is also TBB India. If you want me to review any particular car, so please let us know in my Instagram page, and I'll try my best to arrange that particular car, and then I'll drive the car and share my riding experience with you guys. So that's all about this video, guys. So I have to take a sweet alvida. So please wear seatbelt while you are driving the car, and please wear helmet while you are riding a motorcycle. So that's all about it, guys. So I have to take a sweet alvida. So till then, take care, bye bye, have blast, and ride safe, drive safe.